মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এক বিশেষ খবৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ ওচৰত নতশিৰ হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ বাবে দেশৰ জনতাক E20 ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দি হাৰাশাস্তি কৰিছে। কিন্তু ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে নিজৰ দেশৰ যি ইথানল আছে সেই ইথানলসমূহ জোৰ জবৰদস্তি ভাৰতত ৰপ্তানি কৰিব বিচাৰিছে, ভাৰতত দিব বিচাৰিছে আৰু সেই ভাৰতলৈ ৰপ্তানি কৰা E20 অৰ্থাৎ ইথানল ভাৰতৰ জনতাক জোৰ জবৰদস্তি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছে এইখন চৰকাৰে। আজিৰ দিনটোত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ চৰকাৰী বাসগৃহলৈ উলিওৱা হ'ব এক বিশাল সমদল। হাজাৰ হাজাৰ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব এই সমদলত, যিসকলে এই E20 অৰ্থাৎ ইথানলৰ বাবে সমস্যাত ভুগিবলগীয়া হৈছে। তেওঁলোকে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ওচৰলৈ যাব, তেওঁলোকে আবেদন কৰিব। সবিশেষ খবৰ লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তত। আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বাসগৃহলৈ উলিওৱা হ'ব এক প্ৰতিবাদী সমদল। ট্ৰাম্পৰ বাবে দেশৰ জনতাক হাৰাশাস্তি কৰিছে মোদী চৰকাৰে। জোৰ জবৰদস্তি ট্ৰাম্পে নিজৰ দেশৰ ইথানল ভাৰতলৈ ৰপ্তানি কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে। কিমানজনক মোদীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰোৱাব, কিমানজনক জেলত ভৰোৱাব। E20 পেট্ৰলৰ বিৰোধিতাৰে আজি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহলৈ উলিওৱা হ'ব এক সমদল। অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ নেতৃত্বত উলিওৱা হ'ব এই সমদল। 2 লাখৰো অধিক লোকে স্বাক্ষৰ কৰা অনলাইন আবেদন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক জমা দিয়া হ'ব। দিনৰ 12 বজাতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহলৈ এই সমদল উলিওৱাৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছিল, ঘোষণা কৰিছিল অৰবিন্দ কেজৰিৱাল। আৰু শেহতীয়াকৈ দেখা গৈছে এই যি E20 অৰ্থাৎ ইথানলৰ প্ৰসংগক লৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি, সমগ্ৰ দেশজুৰি অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ। CJPৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিৰোধী পক্ষই বিষয়টোক লৈ সৰব হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু তাৰ মাজতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ চৰকাৰী বাসগৃহলৈ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিবলৈ সাজু হৈছে এতিয়া অৰবিন্দ কেজৰিৱাল। অৰবিন্দ কেজৰিৱালে কৈছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বাসগৃহলৈ যাব একাংশ প্ৰতিবাদকাৰী, যিসকলে হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছে এই E20ৰ বাবে, এই ইথানলৰ বাবে। তেওঁলোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক আবেদন কৰিব যাতে এই ব্যৱস্থা, এই ইথানলৰ ব্যৱস্থা বা ইথানল ব্যৱহাৰ কৰাৰ ওপৰত কোনেও হেঁচা দিব নোৱাৰে। শেহতীয়াকৈ দেখা গৈছে এই বিষয়টোক লৈ বহুজনে আপত্তি দৰ্শোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, কিন্তু তাৰ পাছতো ইথানল ব্যৱহাৰৰ ওপৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জোৰ দিছে। আৰু এয়া সকলো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পক খোজ কৰিবলৈ, ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ ওচৰত নতশিৰ হৈহে কৰা বুলি দাবী কৰিছে। নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক অভিযোগ আনিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। এই মুহূৰ্তত মন্তব্য আগবঢ়াইছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ, শুনক মন্তব্য। केंद्र सरकार, मोदी सरकार जो है वो ज़बरदस्ती लोगों पे इथेनॉल थोपे जा रही है। लोगों की माइलेज कम हो रही है, लोगों के गाड़ियां ख़राब हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद बिना प्रश्नों के जवाब दिए, बिना कोई तर्क दिए सरकार ज़बरदस्ती थोप रही है। उससे ये लगता है कि कोई ना कोई सरकार का हिडन एजेंडा है। एक आरोप ये लगाया जा रहा है कि ट्रंप के दबाव में मोदी जी झुके हुए हैं। ट्रंप अपने देश का इथेनॉल ज़बरदस्ती इंडिया में इंपोर्ट करवाना चाहता है और एक अनुमान के हिसाब से अगले 5 साल में $20 बिलियन का इथेनॉल जो है भारत, मोदी जी जो हैं वो ट्रंप से खरीदेंगे, जो हमारे देश के ऊपर थोपा जाएगा। तो हमारे देश के लोगों की गाड़ियां ख़राब करके और ट्रंप के सामने मोदी जी झुके हुए हैं। परसों हमने इसके ऊपर जो टाउन हॉल किया था वो बेहद सक्सेसफुल रहा। हॉल के अंदर, हॉल के बाहर बहुत लोग थे और लगभग 7 लाख लोग लाइव इस कार्यक्रम को देख रहे थे। ये मुझे लगता है कि दुनिया का रिकॉर्ड है कि कोई भी कार्यक्रम लाइव जो है वो 7 लाख लोग ऑनलाइन देख रहे हों। इसी वजह से यही दिखाता है कि लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं और किस तरह से सपोर्ट में आए। पर लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है बुरी तरह से। जो कोई अगर इसके खिलाफ कुछ कर दे, कोई इन्फ्लुएंसर, कोई कंटेंट क्रिएटर, कोई विक्टिम कोई कुछ कर दे तो उसको डराया जाता है, ट्रोल किया जाता है, धमकाया जाता है, FIR की जाती है। तो लोग बहुत डरे हुए हैं। हमने कुछ दिन पहले एक पिटीशन प्रधानमंत्री के नाम ऑनलाइन साइन करवाई थी, तो लगभग 2,33,238 लोगों ने ये पिटीशन साइन की है मात्र कुछ दिनों के अंदर। ये सारी पिटीशंस की कॉपीज़ आप लोगों के सामने हैं। तो कल प्रधानमंत्री जी को ये पिटीशन सौंपने के लिए मैं 100 लोगों के साथ 12 बजे अपने दफ्तर से यहाँ से निकलूँगा प्रधानमंत्री जी के घर की तरफ, और ये पिटीशंस हम चाहते हैं कि पर्सनली उनको हैंड ओवर करके आएँ और उनसे चर्चा करें कि कैसे इथेनॉल जो है वो गलत है और लोग किस तरह से परेशान हैं।
मैंने चिट्ठी लिख के भी उनसे समय मांगा था लगभग 1 महीना पहले, लेकिन उनका उसके ऊपर कोई जवाब नहीं आया। तो अब ये कल हम पर्सनली लेके जाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी मिलके हमारे बात सुनेंगे। अगर आपके कोई प्रश्न है तो। कौन होंगे आपकी पार्टी के वो या अलग-अलग? कुछ लोग, सब विक्टिम्स होंगे, कुछ पार्टी के भी हो सकते हैं, कुछ पार्टी के बाहर के भी हो सकते हैं, पर ये पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। बिल्कुल। तो रुचिका सिंह का जो हमने देखा कि किस तरह से बेचारी हाथ जोड़ के आंखें नीची करके पूरे देश के सामने कैसे बोल रही है, वो जाहिर तौर पे उसे बुरी तरह से डराया गया है। तो एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी आके कहते हैं कि बच्चों मैंने आपको माफ़ कर दिया, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी इस तरह से एक छोटी सी बच्ची को, 15 साल की बच्ची को अपनी पूरी ताकत लगा के झुका देते हैं, उससे माफ़ी मंगवाते हैं पूरे देश के सामने और उसका वीडियो जारी कराते हैं। क्या ये शोभा देता है एक प्रधानमंत्री को? तो डराने की कोशिश ही, बिकॉज सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन सीजेपी के आंदोलन का ये हुआ कि जो प्रधानमंत्री जी ने सबको डरा रखा था पूरे देश में, कोई कुछ बोलता था उसके पीछे ट्रोल छोड़ देते थे, धमकियां देते थे, गंदी गंदी गालियां देते थे, गंदी गंदी धमकियां देते थे, एफआईआर कर देते थे, गिरफ्तार करा लेते थे। लोगों के मन में डर निकल गया इस आंदोलन के बाद। खूब खुल के लोगों ने मोदी जी के खिलाफ बोला। अब मोदी जी वो वापस डर कायम करना चाहते हैं, लेकिन अब लोग डरने वाले नहीं हैं। एक रुचिका सिंह के खिलाफ मोदी जी ने एक रुचिका सिंह को झुकाया तो 10 रुचिका पैदा हो गई। मैं देख रहा हूँ इतनी बच्चियां जो हैं वो मोदी जी के खिलाफ वीडियो डाल रही हैं। किस किस को मोदी जी जेल डालेंगे, किस किस के खिलाफ एफआईआर करेंगे, किस किस को धमकाएंगे, किस किस को झुकाएंगे? देखिए, उन्होंने एक स्किट किया था जिसमें ये लोग कह रहे हैं कि धार्मिक भावनाओं की, इनकी धार्मिक भावनाओं की ठेस पहुंची है। मैं उनसे, प्रधानमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि चंदा चोरी हो गई, भगवान राम के मंदिर से में इतना बड़ा घोटाला हो गया, रामचंद्र जी की पादुका चोरी हो गई, उनका मुकुट चोरी हो गया, उनकी सारी चीज़ें चोरी हो गई, उससे तुम्हारी भावना वो नहीं हुई? उससे तुम लोगों की भावना खराब वो नहीं, आहत नहीं हुई? केंद्र सरकार, मोदी सरकार जो है वो जब যোৰহাট আৰু দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলৰ গেষ্ট্ৰ ৰোগীসকলৰ বাবে সুখবৰ। যোৰহাটৰ CP হেল্থ ক্লিনিকত উপলব্ধ অভিজ্ঞ গেষ্ট্ৰ এন্ট্ৰলজিষ্ট। প্ৰতি সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ পুৱা 10 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 8 বজালৈ আপোনাৰ সেৱাৰ বাবে উপলব্ধ থাকিব অভিজ্ঞ গেষ্ট্ৰ এন্ট্ৰলজিষ্ট ডাক্তৰ ৰাজীৱ কুমাৰ বৰা। পাচনতন্ত্ৰজনিত সকলো সমস্যা আৰু লক্ষণ যেনে এচিড ৰিফ্লাক্স, GERD, ইৰিটেবল বল চিণ্ড্ৰম, লিভাৰ এণ্ড পেংক্ৰিয়েটিক ডিজিজ, আলচাৰ্ছ, হেপাটাইটিছ আদি সমস্যাৰ বিশ্বাসযোগ্য সমাধানৰ বাবে আজিয়েই পৰামৰ্শ লওক ডাক্তৰ ৰাজীৱ কুমাৰ বৰাৰ। CP হেল্থ ক্লিনিকত এণ্ডস্কপি, কলনস্কপি আৰু চিগমইডস্কপি আদি আধুনিক প্ৰযুক্তিৰে ৰোগ চিনাক্ত কৰি পাচনতন্ত্ৰৰ উপযুক্ত চিকিৎসা কৰা হয়। যোগাযোগৰ ঠিকনা CP হেল্থ ক্লিনিক, মালোৱালি, যোৰহাট। ফোন নম্বৰ 9387114520 আৰু 9365582339।